Hello friends, we are going to learn chapter number 5th of grammar verbs. We will discuss about two types of verbs, transitive and intransitive. Let's see first transitive verb. Transitive verb is a verb which requires an object, that is called transitive object. How to identify the transitive verb? You will have to ask the question with whom, for, what. If you will ask the question with what, you will find object, direct object, and if you will ask question with whom, you will get indirect object. First example I am giving: I gave a mango. What did I give? The answer will be mango. I give a mango to my brother. We are going to find indirect object. Whom did I give a mango? To my brother. So these are the examples of transitive verbs. Now, intransitive verb. If you ask the question with what or whom, an object is not found, then the verb is intransitive. Means, I fly in the sky. So what do I fly? No answer. That's why the fly is an intransitive verb which doesn't require object. Then I laugh loudly. What do I laugh? Nothing is found. So this is called intransitive verb. So this is the difference between transitive and intransitive verb. That in intransitive objects are not found and transitive objects are found. At the time, it's very important to know about the transitive and intransitive verb, as when we are converting active passive, at the time of, we will have to find out which type of verb this is. At time it happens that I go to school. At the time of converting into active passive, that time we will say the school is gone by me. That is incorrect, as go is an intransitive verb. So this is the difference. But I buy a chocolate. What do I buy? Chocolate. Then a chocolate is bought by me. So this is the difference. तो intransitive transitive verb में ये डिफरेंस है. इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती है और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रहती है. There are two types of objects: direct object and indirect object. If you want to know about the object, you will have to ask question with what. I bought a bicycle. What did you buy? What did I buy? The answer will be cycle or bicycle. तो what से क्वेश्चन करोगे और ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. I wrote a lesson. What did I write? A lesson. तो वर्ड से क्वेश्चन करोगे और जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Indirect object, you will have to ask the question with whom. I taught English to my daughter. I taught English to my daughter.
and you will have to ask question with whom did you teach English? My daughter. So my daughter is an indirect object. तो ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस वी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट्स सी द बुक. Let's see the verbs, lesson number 5, and the read the sentence and try to understand. Anna gave her mother a present yesterday. जो क्रिया होती है उसे वर्ब, तो उसने क्या क्रिया की? gave, V2 of V1. Then we are going on a track tomorrow morning. यहाँ पे going वो मेन वर्ब है और आर है वो ऑक्सिलरी या उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. द वर्ड इन द बोल्ड आर वर्ब्स. जो बोल्ड में है वो वर्ब्स हैं. 3 प्रकार, मतलब जो गेव है वो डूइंग वर्ब है और आर है वो बीइंग वर्ब है जो अस्तित्व बताता है हमारा. वी नो दैट अ वर्ब शोज एन एक्शन, एन इवेंट और स्टेट. मैन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी मीन्स एम इज आर वॉज वर. देर आर 2 types of auxiliary, primary auxiliary verbs and main verb, modal auxiliary and primary auxiliaries. We use man or principal verb to indicate the action of the subject. तो मेन वर्ब है वो हम एक्शन, जो सब्जेक्ट है जो करता है उसकी क्रिया बताता है. बतुल लव्स हॉर्स राइडिंग. जो बतुल है वो सब्जेक्ट है, उसकी क्रिया, उसका एक्शन क्या है? लव. जो हॉर्स राइडिंग है उसे पसंद है. वी यूज एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, उसके ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, टू इंडिकेट द टेंस ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब का हम टेंस बताते हैं. ऐसे तो मेन वर्ब में भी हम टेंस बता सकते हैं. उसे बी भी कहते हैं, टू बी फॉर्म्स. एम इज आर वॉज वर. डू का डू, डिड, डन, डज. हैव का हैव, हैज, हैड. विल, वुड, दिस आर मॉडल ऑक्सिलरीज. ये ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज. तो मेन वर्ब के साथ हम ऑक्सिलरीज यूज करके टेंस बता सकते हैं और ऐसे हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, कंप्लीट these sentences with suitable main or auxiliary verbs. Auxiliary verbs मतलब helping verbs. Main verbs means root verb. One has been given. Tell me, are you coming to the party? So are है वो auxiliary verb है. Second one, they have finished the job. They have finished the job. तो जो ये have है वो auxiliary है, they have, and finished है वो main verb है. Then what do you do? What do you do every Sunday? Do is there. Now I would like to watch TV. There is a good film at 6 o'clock. Would auxiliary, modal auxiliary, we have used that. And like is the main verb. Then fifth, she does not want to stay at home. She wants to play with her friends. Simple present tense. Does हमने यहाँ पे use किया है. Now she has always wanted to meet Sachin, her favorite cricketer. और wanted है वो V3 है, मेन फॉर्म रूट वर्ब का, जो मेन वर्ब है उसका, और उसके साथ हमने ऑक्सिलरी यूज़ किया है. वेयर डिड
Suhail and Manmita go yesterday. Did. Then what were the children doing? Were. So these are, we have used here man and auxiliary verbs. Now let's see transitive and intransitive verbs. हमने एक्सप्लेन कर दिया है शुरू में. तो we know that a sentence has subject and verb. Sometimes the verb also has an object which receives the action of the verbs. सब्जेक्ट मतलब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, और कभी कभी ऑब्जेक्ट हो भी नहीं सकता है. अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट. तो मैंने पहले समझाया है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. समथिंग दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द मैनेजर साइंड द कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डिड द मैनेजर साइन? ऐसे क्वेश्चन करना है, वर्ड से क्वेश्चन करोगे. अगर जो कोई वर्ड मिलता है तो वो नाउन ही होगा, और जो वर्ब है अगर नाउन प्राप्त होता है तो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होगा. द पर्सन हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब इन एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मानस गेव फ्लावर्स टू एकता. देखो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है. Whom did मानस गिव द फ्लावर्स? whom से क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा. मानस ने फ्लावर किसको दिया? एकता. तो एकता इज ह्यूमन बीइंग, एंड ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है. क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा. देखो हम देखते हैं, द वर्ब्स दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. और दो प्रकार के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट पाया जाता है, व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर आप क्वेश्चन करोगे व्हाट और whom से और ऑब्जेक्ट प्राप्त नहीं होता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. जेनेट एट जलेबीज. तो जेनेट एट जलेबीज. व्हाट डिड जेनेट ईट? जलेबी. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. I ate hungrily. What did I eat? Hungrily. Hungrily is not an object. So this is transitive, intransitive verb and direct, indirect object. अब exercise number 2. Tick the correct answers. Circle the object. Tick the correct answers, circle the object. तो यहाँ पे हम ठीक करेंगे. करेक्ट आंसर है वो हीट एक्सपेंड्स मेटल्स. तो यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन करो. व्हाट डज इट एक्सपेंड? क्या आंसर मिलेगा? मेटल्स. अगर व्हाट से क्वेश्चन किया और आंसर मिला तो ये हुआ ट्रांजिटिव. फर्स्ट हैज बीन गिवन. नाउ सेकंड वन, मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग. इंट्रांजिटिव. व्हाट डज मेटल एक्सपेंड? कुछ नहीं होता, इंट्रांजिटिव है. द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार. ड्राइवर ने क्या स्टॉप किया? व्हाट से क्वेश्चन करो. कार. व्हाट डिड द ड्राइवर स्टॉप? कार. ट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट है वहां पर. द कार स्टॉप्ड एब्रप्टली.
एडवर्ब है वो, ऑब्जेक्ट नहीं। कैसे, कैसे से अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो दिस इज नाउ फिफ्थ वन, यू मस्ट स्पीक ट्रुथ। आपको क्या बोलना चाहिए? वॉट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें सत्य बोलना चाहिए, तो वो हुआ ट्रांजिटिव, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है। क्या है, क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको, वॉट से क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब 6 में देखोगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यू मस्ट स्पीक लाउडली। आपको क्या बोलना चाहिए? लाउडली नहीं, वो तो एडवर्ब होता है। हाउ मस्ट यू स्पीक लाउडली, तो वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, न तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है न तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। 7th, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। बच्चा है वो पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग, तो ट्रांजिटिव हुआ 100%, वेरी इजी। व्हाट इज द बॉय फ्लाइंग? द काइट, ट्रांजिटिव। और 8th में नहीं होगा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। What are the birds flying? Question, what से क्वेश्चन करो, what are the birds flying? Nothing. This is called intransitive, याद रखना। what और whom से क्वेश्चन करोगे, अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो ट्रांजिटिव है, वरना आंख बंद करके बोल देना ये इंट्रांजिटिव है। द एक्सप्लोजन सैंक द शिप। क्या डुबो दिया? शिप, ट्रांजिटिव। द शिप सैंक सडनली, एडवर्ब। तो whom और what से क्वेश्चन करते हो और आंसर मिलता है तो वो होता है ट्रांजिटिव, अगर नहीं मिलता है तो वो होता है इंट्रांजिटिव। एक्सरसाइज नंबर C, अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए अब कि अगर हम वॉट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और होम से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट हैज बीन गिवन फ्रेंचाइज, first has been given. Now next, the crowd cheered the bowlers. The crowd cheered the bowler. तो whom did the crowd cheer? तो whom से क्वेश्चन करते हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, निर्विवाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वो बॉलर है वो ह्यूमन बीइंग है। सो थर्ड, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग द सस्पेक्ट। यहां पर भी किसको, क्या से नहीं, किसको पूछताछ कर रहे हैं पुलिस? सस्पेक्ट, तो वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये भी ह्यूमन बीइंग है। द स्टूडेंट्स इलेक्टेड मिश्रा एज द माहिरा एज द हेड गर्ल। Whom? Mahira, that is indirect object. Palvi gave Ravi all her stamps. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, रवि है वो इनडायरेक्ट है, और ऑल हर स्टेम्प्स, पल्लवी ने रवि को क्या दिया? ऑल हर स्टेम्प्स। तो ये वो ऑल हर स्टेम्प्स पूरा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको? होम से क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिक्स्थ, वी वॉच द मैच ऑन द टेलीविजन ऑल डे। व्हाट डिड वी वॉच? मैच, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेवंथ, स्टूडेंट्स boarded the train, direct object. He washed the clothes. What did he wash? What did he wash clothes? तो
These are the exercises of C, direct and indirect objects we have found. Let's see first what is complements. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है द वर्ड्स दैट आर एडेड टू वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन टू कंप्लीट द मीनिंग आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट. सेंटेंस का फुल मीनिंग बनाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. देखो एक्सरसाइज देखते हैं. सर्कल द वर्ब्स एंड अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट इन दीज सेंटेंसेस. Verb can be man or auxiliary. First has been given. Ananya is a timid girl. Ananya subject है, is है वो verb है और timid girl है वो complement है. क्योंकि अनन्या is तो मीनिंग बनता नहीं. The words that are added to verbs of incomplete prediction to complete the meaning are known as complement. Jack become a scientist. Jack become what? Complete meaning होता नहीं है. Jack subject become है वो verb है और scientist वो है complement या वो है direct object. Jack क्या बने? Now, Apurva painted her sister's face. Painted verb and sister's face. That is complement. The girls were singing songs. तो यहाँ पे were और singing है वो verb है और songs है वो complement है. कभी कभी confusion हो जाता है कि complement मतलब जो object है वो complement का काम करते हैं मीनिंग को पूरा करने के लिए. पुनीत हैज़ 20 cats. हैज़ है वो वर्ब है और 20 cats वो है कॉम्प्लीमेंट. द बॉयज प्लेड क्रिकेट. द बॉयज प्लेड क्रिकेट. बॉयज सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब एंड क्रिकेट कॉम्प्लीमेंट. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. इज हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी B form and very difficult is complement. The children looked surprised. Looked and surprised. तो यहाँ पे surprised है वो ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है. Now let's do exercise number E. Complete these sentences with the correct forms of the words in the bracket. One has been given. He has selected his partner for the project. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा. तो वर्ब फॉर्म है वो सिलेक्ट, उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है सिलेक्टेड. देन नाउ नेक्स्ट, हैज़ द प्रॉब्लम बीन. अगर बीन है और ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का सेंटेंसेस लिए यहाँ पे V3 या पास्ट पार्टिसिपल आएगा. हैज़ द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का सेंटेंस है तो यहाँ पे V3 आएगा. माई वॉच वॉज ऑन द ट्रेन. सॉरी, माई वॉच वॉज स्टोलन ऑन द ट्रेन. स्टील है उसका V3 होता है स्टोलन और ये सिंपल पास्ट का पैसिव है. माई वॉच वॉज स्टोलन ऑन द. और पैसिव सेंटेंसेस में हम V3 का यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. द सॉन्ग वॉज, ये भी पास्ट सिंपल पास्ट का पैसिव है. द सॉन्ग वॉज संग बाय मेघना एंड हर ब्रदर. तो सिंग का सिंग, सैंग, संग. संग इज V3 तो हमने यहाँ पर भी हमने संग यूज़ किया है. फिफ्थ वन, ऑल द मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय अवर कैट.
तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। और पैसिव सेंटेंस में हम ज़्यादातर नहीं, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या उसे V3 भी हम कहते वही यूज़ करते हैं। आई अटेंडेड द क्लास एवरी ट्यूसडे फॉर अ ईयर। यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड। तो यहाँ पे अटेंड का अटेंडेड, ये पैसिव नहीं है, लेकिन हमने उसका अकॉर्डिंग टू टेंस वी हैव पुट देयर द फॉर्म ऑफ attend. He has gone to France, so you cannot meet him now. Go, gone and went. Go, went, gone. Sorry. Go, went, gone. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम V3 यूज़ करें। मतलब 12 टेंसेस है, उसमें जितने भी परफेक्ट टेंसेस है उसमें हम V3 यूज़ करते हैं, और जितने भी टेंसेस है उसके जो पैसिव करते वक्त हम V3 यूज़ करते हैं। तो टोटल जितने भी पैसिव सेंटेंस के टेंसेस के पैसिव करेंगे उसमें हम V3 यूज़ करते हैं, और जितने भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये सब में हम V3 यूज़ करते हैं। तो गो, वेंट, गॉन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Let's see. This table shows a list of prefixed and suffix that we can add to form verbs. तो verb बनाने के लिए हम suffix या prefix यूज़ करते हैं। कभी आगे जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको prefix, और लास्ट में लगाते हैं उसको suffix कहते हैं। तो डार्क का डार्कन हमने किया, तो यहाँ पे हमने इन लगाया, डार्कन, डीपन, वाइडन। तो हमने एडजेक्टिव और नाउन में से हम वर्ब बनाते हैं। डार्क एडजेक्टिव, उसमें से हमने डार्कन बनाया। देन अप्रिशिएट, उस यहाँ पर भी हमने ATE सेलिब्रेट। देन कॉन्ग्रेचुलेट, यहाँ पे हमने ATE लगाया। देन थर्ड वन आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हमने IFY लगा के हमने वर्ब बनाए हैं। ISC रियलाइज, रिकॉग्नाइज, मॉडर्नाइज। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के हम वर्ब बना सकते हैं। इन एबल है, उसमें हमने इन लगाया, प्रीफिक्स लगाया, इनेबल, एनस्लेव, एनलार्ज। तो यहाँ पे हमने ये प्रीफिक्स के एग्जाम्पल हैं, और सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का एग्जाम्पल है। लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ब फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। फर्स्ट हैज बीन गिवन, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ब फॉर्म्स। मतलब जो वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म है वो सूटेबल, वो हमें यहाँ पे फिल करना है। द शोल्डर शुड बी, तो ये पैसिव सेंटेंस है। द सॉइल शुड बी फर्टाइल बिफोर द सीड्स आर प्लांटेड, पैसिव है। तो ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी का हम कन्वर्ट करेंगे तब बी या बीन लगाएंगे और उसके साथ V3 लगाएंगे। द गवर्नमेंट नीड्स टू वाइडन, वाइड का वाइडन हमने बनाया है। तो हम सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज़ करके हम एडजेक्टिव या नाउन को वर्ब बना सकते हैं। वाइड इज एडजेक्टिव। वी नीड टू फीड, फूड है वो क्या है, अब नाउन है, तो नाउन में से हमने क्या बनाया, वर्ब, फीड। वी नीड टू फीड द फिश ओनली वंस अ डे। देन द सस्पेक्ट कैन, प्रूफ है वो नाउन है, और उसका हमने बनाया वर्ब बनाया प्रूव, दैट ही वॉज नॉट इन द सिटी एट द टाइम ऑफ द बर्गलरी। फिफ्थ वन, प्योर एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो नाम के अर्थ में जो मीनिंग ऐड करते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य और विशेषण। तो
द सस्पेक्ट कैन प्रूफ में से बना. नाउ प्योर है वो एडजेक्टिव है, प्योर वाटर, प्योर घी, क्योंकि घी को वो मॉडिफाई मीनिंग ऐड कर रहे हैं. वी कैन प्यूरिफाई द वाटर बाई बॉइलिंग इट. यहाँ पे प्यूरिफाई हमने वाई लगा के हमने उसको सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके हम उसे वर्ब बना सकते हैं. द फैक्ट्री वर्कर्स थ्रेट, नाउन है, थ्रेटन, en लगा के सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के हमने वर्ब बनाया. थ्रेटन टू गो ऑन द स्ट्राइक इफ देयर डिमांड्स आर नॉट मैट. What does this strange message signify? Sign, noun, signify, verb बना दिया. And the shopkeeper tried to pacify the unhappy customers. So, we have explained the lesson number 5th of grammar verbs. वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. और उसमें खास याद रखने की ये बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, बाद में सफिक्स, प्रीफिक्स, नाउन में से या एडवर्ब में से या एडजेक्टिव में से हम वर्ब कैसे बनाते वो देखना है. और बहुत इजी चैप्टर है. मैं आशा रखता हूँ कि आप घर पे प्रयत्न करोगे, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करोगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने का प्रयत्न करोगे. उसी जरिए आप ये भी प्राप्त कर पाओगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. सो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये चैप्टर इजी लगेगा और आप घर पे अपने आप ट्राई करोगे कि कौन सा सेंटेंस है और बेटर करने का प्रयत्न करोगे. थैंक यू वेरी मच.